सर फर्टिलिटी इन मेन, ये जो टॉपिक है ये एग्जैक्टली क्या है? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ये हमारे जैसे यंगस्टर्स को या हमारा नागपुर का मर्द समाज। या नागपुर के मर्दों के लिए आज मैं एक विशेष पॉडकास्ट लेके आया हूँ, हाँ। जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलिटी इन मेन, एंड दिस इज अ बिग इशू. Why this is a big issue, I'll tell you, Shashank. Because over the years, when I joined my post graduation 30 years back, 33 years back, that time we were taught that the male infertility is responsible for 30% of cases. So 70% cases women are responsible for fertility problems, and only 30% cases men are responsible. But slowly what happened, the number is rising, और आज ये स्थिति है कि 60% केसेस में 50 to 60% केसेस में men are responsible for infertility, and this is something which we all should keep in mind. क्योंकि हमारे समाज में एक लोगों के मन में ऐसे धारणा है कि फर्टिलिटी का जब इशू रहता है, जब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो महिलाओं को ही दोष दिया जाता है, और हो रहा है ये कि 60% मर्दों में ही ये प्रॉब्लम आ रहा है. बट सर ये पहले ऐसा था कि सिर्फ महिलाओं में वो प्रॉब्लम थी एंड मर्द में बहुत कम थी, और अब परसेंटेज बढ़ते जा रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है. पहले भी था ये? पहले भी था. पहले भी मेल इनफर्टिलिटी ये इशू था, लेकिन उसका प्रमाण कम था. वो सिर्फ 30% था. अब उसका प्रमाण 50 to 60% हो गया. एंड इफ आई आस्क यू व्हाई? The reason is there are many reasons, but we can discuss one by one. Okay. I think the most important reason behind this is lifestyle modification or lifestyle changes which are happening these days. The more of alcoholism, more of tobacco use and smoking is creating a problem. It is a major cause of male infertility. और ये जो अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग जो है, स्पेशली टोबैको जो है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. सर इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, आई मे साउंड स्टूपिड बट अब पूछना पड़ेगा. व्हेन यू से टोबैको एंड अल्कोहल, सो इज इट फॉर दोज जो बहुत बड़े प्रमाण पे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रमाण पे कर रहे हैं, या आप ये कहोगे कि यार अगर आप स्मोक दिन का एक भी कर रहे हो या ऑफन कर रहे हो, समटाइम्स कर रहे हो, तो भी यू विल बी हैविंग दिस? मुझे लगता है कि as far as smoking is concerned या tobacco use is concerned, it has to be all or none law. ये कोई मतलब नहीं है कि मैं रोज एक सिगरेट पीता हूँ, इसमें कोई मतलब नहीं है. ऑल और नन लॉ चाहिए. अब अल्कोहलिज्म का ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा एक इशू है कि अल्कोहल इज नॉट दैट हार्मफुल एज टोबैको इज. इसका मतलब मैं अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अल्कोहल, when you compare both, if you are a social drinker and once in a while, maybe once in fortnight or once or in weekend month, drinking, or weekend you are having a peg or two, that is okay. But if you smoke daily or if you are tobacco sure, and what if I smoke when I am drinking? Again, I would suggest that please stay away from tobacco. Sir, what does tobacco exactly do to a male sperms or male's body? Tobacco is when it comes to fertility. Yeah, tobacco is harmful in many ways. Like we all know that it causes cancer. But when it comes to fertility, it is responsible for the degradation of sperms. There is something called as oxidative stress. And ROS or reactive oxygen species is something which is responsible for the degradation of sperms. So the sperms are directly affected by the smoking and the tobacco, and therefore you have to stay away from it. But sir, the quality of sperm gets affected. Obviously, ये तो बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है कि नहीं करना चाहिए. बट थोड़ा सा अगर उस पर बात करें तो आज का जो मर्द है, आज का जो मेल है, उसमें तो ये प्रॉब्लम है ड्यू टू टबैको एंड एवरीथिंग, आप जैसे बोल रहे हो. बट अगर आप कंपेयर करें टू योर जनरेशन और 80s 90s वाले जो मर्द थे, सर उस टाइम पे तो स्मोकिंग ज्यादा थी ना? मतलब आज भी है, बट उस टाइम पे तो इट वाज अ थिंग. Your car used to have that ashtray, your cafe used to have that ashtrays. So yes, now I'll tell you, this is one factor which we are discussing, but it is a multifactorial problem. And one more thing which is adding fuel to the fire is stress and anxiety. These days, अब क्या है, आज का जमाना ये टारगेट का जमाना है, आज का जमाना ये दिखावे का जमाना है.
और सब लोग दौड़ रहे हैं, हम्म, और इस दौड़ में, इस स्ट्रेस में आप लोगों को जो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, इसकी आपको कल्पना ही नहीं है। और इसमें ये मेल इनफर्टिलिटी का इशू बहुत बड़ा इशू है। तो एज यू राइटली सेड, स्मोकिंग तो उस वक्त भी था, फिर इसमें अब ये प्रमाण क्यों बढ़ गया है? तो ये और सारे कई सारे फैक्टर्स इसमें फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और अहम फैक्टर है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और ये वर्क प्रेशर जो है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देने की। तो अगर हम ऐसे पॉइंटर्स में इसको करें, मेन फर्टिलिटी 2025-2000s में डैमेज करने के रीजंस क्या है? फर्स्ट इज यू सेड स्मोकिंग, सो इफ यू जस्ट पॉइंट इट आउट, क्या क्या पॉइंटर्स है और उसमें? एक हो गया स्मोकिंग, सेकंड इज अल्कोहलिज्म, थर्ड एज वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल. One more issue which is very interesting, and we must discuss about this on this platform, is about the addiction to the porn. So what is happening is, see, imagine 30 years back, porn material was not so easily available, but now it is on everybody's mobile. It is available on mobile, and the people are getting addicted. It is not applicable to all, of course. Everybody doesn't get affected or addicted to the porn, but there are few men who get addicted to the porn. So what happens with the addiction to the porn? They are so much into virtual world that they are not enjoying the real world. Okay. And then when there is a performance, at that time of performance, they do not have that libido. So there is loss of libido. और इनका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो इरेक्शन के लिए और इसके लिए काम आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, उसका लेवल डाउन हो जाता है। ये मेंटल ब्लॉक की वजह से होता है, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर के कारण एक्चुअल लाइफ में उनको सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। बट सर, स्पर्म तो स्पर्म रहेगा ना, इवन इफ यू हैव porn addiction. आई विल टेल यू, मतलब उसकी क्वालिटी तो कुछ फर्क नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, स्पर्म तो स्पर्म है, मेंटल और एग्जैक्टली डिफरेंट है। आप जो कोई, आप समझ लो एक म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा है, तो वो ऑर्केस्ट्रा समझ लो कोई चला रहा है, राइट। तो जो ऑर्केस्ट्रा का सूत्रधार रहता है, वो ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करता है, राइट। इसी तरीके से एक ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का हायर सेंटर है, जो इमोशंस से जुड़ा हुआ है, एंड देयर इज अ हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, एंड देन देयर इज अ टेस्टिस. So erection has got a direct relation with the hypothalamus, and it is related to emotions. So this is a performance problem. The problem is with the performers. They are not able to perform because they have a erectile dysfunction. So in short, male problems के अलग अलग प्रकार है। उसमें एक प्रॉब्लम है स्पर्म का काउंट कम होना, जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है, अजूस्पर्मिया, मतलब स्पर्म्स का काउंट नील होना, ये दूसरा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू स्पर्म। बट तीसरा एक इशू है जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं, जो मेंटल इशू है, जिससे साइकोलॉजी या एंग्जाइटी, स्ट्रेस, परफॉर्मेंस प्रेशर जुड़ा हुआ है, और इसमें ये सब चीजें आती है। और इसमें टू मच ऑफ एडिक्शन टू पॉर्न इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स which is responsible for male infertility these days. So when you said the porn topic, I understand कि it is not about the quality of sperm, it is about कि वो intercourse ही नहीं कर पाएगा। Exactly. Because of they his may addiction. have a very good sperm count, but they will not be able to perform. Okay. And that's the reason why they have a problem and they get. So you count that under fertility in men wala? Yes, topic. Yes. That is a psychological factor which comes under male infertility. Okay, okay. And sir, if I ask कि we discuss about the fertility and everything, if I ask you कि अगर मुझे अच्छी fertility वाली एक body या life जीनी है, तो what should be the things? मतलब अब बहुत सारी रील्स ऐसी दिखती है कि if you wear a tight underwear तो आपको उसमें फर्टिलिटी या शायद इस सब में बहुत प्रॉब्लम जाएगा, या आपने इस मटेरियल की अंडरवेयर पहनी तो शायद उसमें प्रॉब्लम जाएगा। तो ये बहुत सारे ये सारी चीजें। सो when you have to tell a guy कि भाई तेरे को हेल्दी लाइफ जीनी है, तो क्या एक उसका वो होना चाहिए, मतलब खाने में कुछ है, या सोशल ड्रिंकिंग जैसे आपने बोला, स्मोकिंग तो ऑब्वियसली नहीं करनी है, ऐसा एक अगर आप बता पाओ एक। यस, उसमें कैसा है कि जैसा आपने बिल्कुल सही बोला कि आप इमेजिन करो कि जो ह्यूमन बॉडी है, अ बॉडी ऑफ अ मैन इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट टेस्टिस दे आर हैंगिंग डाउन इन द स्क्रोटम। एंड व्हाई दे आर इन द स्क्रोटम? बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है, उससे वो टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है।
क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्रीज रहता है, लेकिन टेस्टिस जो स्क्रॉटम में रहते हैं उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, और उसकी वजह से टेस्टिकुलर प्रोडक्शन या स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से होता है. सपोज you are working, there is one more issue, the problem of your profession. Suppose you are working in a furnace, or you are working in a condition where there is a too hot temperature. That hot temperature can have its impact directly on the sperm production, और उससे sperm production कम होता है. इसलिए फर्नेस में काम करने वाले लोग या सर फिर तो पूरा नागपुर ही. हाँ बिल्कुल, लुकिंग एट द टेम्परेचर, नागपुर का टेम्परेचर तो ऐसा है. आई वुड कम टू दिस पॉइंट कि नागपुर में कुछ फैक्टर्स है कि नहीं. फर्नेस में ही काम हम लोग जी रहे हैं ऐसा. अभी तो हम लोग अप्रैल मई में बैठे, तो मई में तो हम लोग फर्नेस में बैठे हैं. बट नहीं, ऐसा नहीं है, इतने टेम्परेचर से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा. लेकिन टाइट अंडरगारमेंट्स का थोड़ा सा देयर इज अ कंट्रोवर्सी. नाउ द लेटेस्ट गाइडलाइंस और द लेटेस्ट रिसर्च सेज that the tight undergarments do not have impact directly on the sperm production, but yes, to some extent, temperature, if it is more, then it will lead to the reduction in the sperm production, and that is why tight undergarments are not advocated. In fact, you should use not only loose undergarments but also cotton fabric. That is more important. And अभी इसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि एक इशू जो काफ़ी लोगों में डिस्कस नहीं होता है, लेकिन जो बहुत आजकल इसमें हमारे रिसर्च में आ रहा है, वो है फंगल इन्फेक्शंस. तो जैसे आप यदि कॉटन के कपड़े नहीं पहनते हो, स्पेशली हमारे देश में और हमारे नागपुर में जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो इंडिया इज बिकमिंग कैपिटल ऑफ फंगल इन्फेक्शंस. और कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस. सो वी आर जस्ट नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द फैक्टर्स, दिस इज वन मोर फैक्टर, हाइजीन, यूज ऑफ कॉटन अंडरगारमेंट्स, लूज अंडरगारमेंट्स. all these loose undergarments are good for. They are good, definitely good. Okay. And cotton undergarments and hygiene, all this. So if I ask you tight or loose, which one is better? Loose is better. Loose is better, definitely. Okay. But वो मर्दों को बताया जाता है ना कि फिर वो टेस्टिकल्स आपके लूज रहते हैं, ये सब मिथ है. अच्छा, ये मिथ है, इसमें कोई मतलब नहीं. इनफैक्ट लूज अंडरगारमेंट्स से स्पर्म प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से होगा. ओके, बिल्कुल होगा. ओके. वी केम टू दिस नागपुर वाला थिंग. नागपुर सिटी के जो मर्द है, मेल है, व्हाट इज द मेजर रीजन ऑफ फर्टिलिटी का इशू, या नागपुर में कुछ और फैक्टर्स है जिससे फर्टिलिटी पे अफेक्ट हो रहा है? नागपुर एज सच तो नहीं, लेकिन नागपुर में सबसे ज्यादा केसेस कौन से टाइप के दिख रहे हैं? कि अभी मैं जैसे रोज के पेशेंट देखता हूँ, और 30 ईयर से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसलिए मैंने सबसे पहली बात जो छेड़ी थी वो टोबैको की छेड़ी थी कि नागपुर में अभी हम लोग कोई भी रील देखो तो उसमें नागपुर का खर्रा और नागपुर का तंबाकू ये बहुत चलता है. और ये फैक्ट है कि यहाँ पे लोग ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं. तो ये एक फैक्टर मैंने देखा है जो नागपुर में शायद मेल इन्फर्टिलिटी का एक कारण है. Eating tobacco is more dangerous or smoking tobacco is more dangerous? Both are equally dangerous. But if stay away from tobacco in any form. But is there any differentiation for? No, my message is very loud and clear. Stay away from tobacco in any form. Okay. And heat का, नागपुर का गर्मी का कुछ प्रॉब्लम? ऐसा नहीं है, क्योंकि अपनी बॉडी जो है ना, it gets acclimatized to the heat, and especially in Nagpur we are so much used to this heat. Because of that, our body gets acclimatized. So I don't think temperature directly has its impact. But as I told you, since it is known that people working in furnace or people working in hot temperatures, they have its impact and the sperm production may go down. Similarly, the temperature may also have its impact, but at the same time we must remember that our body is so well acclimatized to this temperature that usually there is no problem. सर ऐसा रहता था तो फिर वो रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को सबको प्रॉब्लम आते थे. ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी एडजस्ट हो जाती है उसको. तो नागपुर के केसेस में मेजॉरिटी टबैको इज द इशू. टोबैको इज द मेन इशू व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड कि यार टबैको करते हैं. यस. एंड नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, अभी एक थोड़ा सेंसिटिव इशू को भी मैं टच करना चाहूँगा. वो एक ये इशू है कि थोड़ा सा आजकल, मतलब देखो कैसा है, ये बात करते वक्त मैं थोड़ा केयरफुली इसलिए बात कर रहा हूँ कि लड़कियाँ आजकल बहुत आगे बढ़ रही है और उन्होंने आगे बढ़ना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है. इनफैक्ट हम लोग सभी उसको प्रमोट करते हैं. हम लोग तो आजकल ऐसे बात करते हैं कि लड़कियों ने सब जगह जाना चाहिए. अब एस्ट्रोनॉट्स लड़कियां हैं,
लड़कियां पायलट रहती है, जेट फाइटर प्लेन चलाती है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो उसमें लड़कियों का दोष नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी का जो एक ढांचा बन रहा है, इसमें थोड़ा सा मेन आर टेकिंग बैक सीट, एंड दैट इज वन मोर रीजन वेयर थोड़ा सा एग्रेशन लड़कों का कम हो रहा है। मतलब मैं एक आपको द सेंटेंस अल्फा मेल काइंड ऑफ जॉब बोल रहा हूँ। cowboy हाँ। type of personality. Where have all these cowboys gone? ये आप में का जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ गया है? आप प्लीज एक्सप्लेन, मतलब क्या हो रहा है ये? ऐसा डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में था कि जो मर्द रहते थे वो औरतों को बहुत प्रेशराइज करते थे, दबा के रखते थे, हम तो ऐसे सुनते कि मारते भी थे। ये सब चीजें तो बिल्कुल बराबर नहीं है, इसका तो खंडन करना ही चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मेल शुड हैव दैट दैट दे शुड हैव देयर से एटलीस्ट। तो थोड़ा सा मुझे आजकल लग रहा है कि लड़के जो बैकफुट पे जा रहे हैं उसमें भी उनका जो थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसे चेंज हो रहा है कि जैसे आपने का और की वो जो मूवी थी उसमें देखा होगा कि उसमें दिखाया है कि लड़का घर का काम करता है और लड़की बाहर का काम करती है, क्योंकि वो सुटेबल है उनके लिए, वो सब ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लड़कों का भी एक इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि शायद उसकी वजह से भी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, लेकिन एक सर्वे आया है और एक न्यूज भी आई थी कि स्पर्म काउंट इज ड्रॉपिंग डाउन ड्रास्टिकली, एंड इफ दिस स्पर्म काउंट गोज डाउन लाइक दिस may make humans extinct in maybe 1,000 years from now. So this may so happen because I remember 100 million sperm count was normal 30 years back. We used to get reports, almost all male patients, they used to have 100 million count, which is considered as a very good count. Now hardly any man is having such a good count. Most of the sperm count goes to around 15 million, 20 million, that's all. And that is why even the sperm count range, WHO has now drastically made changes in this WHO account or numbers, and now they say that 16 million to 15 million count per ml is considered as a normal count, whereas initially it was 20 million. So they are also making changes depending on the things which are happening in the environment, because of which the sperm count is going down. So the male factor or the testosterone level, I think that also has some impact on male infertility. Though I cannot directly explain it, but I feel that there is some issue related to the man taking a back seat. And there is a study on this also, on this topic? There is not exactly. Just an observation. No study, but this is an observation. And there are many studies which are definitely saying that sperm count is going down. And it is going down rapidly. And this is going to have its impact on the male infertility. Sir, बैड स्पर्म्स या स्पर्म्स की क्वालिटी खराब होगी उसके तो आपने रीजंस बताए, बट स्पर्म काउंट कम होना इसके क्या रीजंस है? देखो, क्वालिटी और काउंट ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ओके, बट इफ यू हैव अ गुड क्वालिटी देन आल्सो यू कैन, उसमें डिफरेंट चीजें हैं। व्हेन द स्पर्म काउंट गोज डाउन इट इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया, which is the commonest cause of male infertility. When the sperm count becomes zero, it becomes nil, it is called as azoospermia, which means sperm में सीमेन में sperms ही नहीं है। तीसरी एक कंडीशन है टेरेटोजूस्पर्मिया, जिसमें जैसा आपने बोला स्पर्म का काउंट नॉर्मल रहता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफेक्टिव रहता है। तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को टेरेटोजूस्पर्मिया बोलते हैं, काउंट को ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, और नील काउंट को अजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ये सब हुआ क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है परफॉर्मेंस की, और उसमें आता है हायर सेंटर, दैट इज हाइपोथैलेमस। सो इमोशंस आर हैविंग इट्स इम्पैक्ट एंड दैट इज टेकिंग टोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मेल, एंड दैट कम्स अंडर द not the structural or the numerical problems, but under the psychological problems. Okay. Sir, ये जो if there are bad sperms, there are sperm count कम है, तो मैं क्या करूँ if this is the case? Yes, मेरे पास पहली बात तो पता ही नहीं है ना, वो तो टेस्ट होगा तब पता चलेगा, बट ये किस एज ग्रुप वाले बंदे ने पहले जाके कराना चाहिए? देखिए, अभी ये एक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है
जिसमें किस वक्त जाना चाहिए ये तो यूजुअली शादी के बाद ही लोग जाएंगे। हाँ वो क्योंकि मतलब एक कैसा है सोसाइटी कि में तो शादी के बाद ही जा obviously रहा है, शादी करने के बाद एक जब साल तक बच्चा तुम करना है ट्राई कर रहे हैं, बच्चा हो नहीं रहा है तो तुम बोलोगे अरे तब क्यों नहीं जाओ। हो रहा है, तो हाँ तुम जाते हो, हाँ। तुम टेस्ट डॉक्टर के पास जाते हो, टेस्ट कराते हो, मेल इन्वेस्टिगेशंस, फीमेल इन्वेस्टिगेशंस, फिर उसमें पता चलता है कि स्पर्म का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी इसमें जैसे अपन किस वक्त करना चाहिए ये डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें एक प्री मैरिटल काउंसलिंग भी होता है। और प्री मैरिटल काउंसलिंग मतलब शादी के पहले आप देखो कि आप सुदृढ़ हो कि नहीं हो। कुंडली देख रहे हो तो ये भी कर लो। हाँ, कुंडली के साथ साथ आप ये भी देखो। और उसमें एक इशू है जो कि फिर से सेंसिटिव इशू है, लेकिन लड़कियों का अल्ट्रासाउंड और लड़कों का सीमेन टेस्ट यदि कर लिया तो ये मोटा मोटी तो पता चल जाएगा कि लड़के में कोई इशू नहीं है, और लड़कियों का अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, स्ट्रक्चरली सोनोग्राफी में यूट्रस नॉर्मल है, तो लड़कियों का भी सिस्टम अच्छा चल रहा है और लड़कों का भी सिस्टम अच्छा चल रहा है। लेकिन ये करेगा कौन? क्योंकि शादी करते वक्त ये जो चीज़ें ये डिस्कस नहीं होती। हम लोग जैसे अभी HIV के बारे में, अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि HIV टेस्ट करो, और उनका प्री मैरिटल काउंसलिंग का एक डिपार्टमेंट रहता है और वो HIV टेस्टिंग करना कंपलसरी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग इस विषय पे बात नहीं कर सकते, सोसाइटल इशू है तो थोड़ा सोसाइटी का इशू है, थोड़ा सेंसिटिव इशू है। बट आई थिंक देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस। बट इफ कपल्स थिंक यार कर लेते हैं तो दे विल डू, मतलब घर वालों को बिना बताए कि भी कर सकते हैं बिल्कुल कपल्स। कर सकते हैं, घर वालों को बताने की भी जरूरत नहीं है। और ये भी अच्छी आइडिया है कि शादी के पहले आप स्पर्म टेस्ट करके देख लो, ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि हाँ मेरा स्पर्म काउंट नॉर्मल है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ और मैं इसके और एक स्टेप आगे जाऊंगा। अभी आजकल अभी अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन ये चीजें आ रही है, मोबाइल के ऐप्स आ रहे हैं। तो मोबाइल ऐप्स जो है वो ऐसे ऐप्स है जिसमें तुम एक्चुअली तुम्हारा खुद का स्पर्म काउंट मोबाइल पे देख सकते हो। उसमें एक किट आती है, वो किट पे आप सीमेन कलेक्ट करके उसमें रखो, और मोबाइल के कैमरा से आपको स्पर्म काउंट भी मिलेगा, वो स्पर्म्स दिखेंगे भी आपको, और उसका काउंट आपको पता चल जाएगा, मतलब वो एनालिसिस करके रिपोर्ट सो यू कैन डू इट एट होम। जैसे प्रेगनेंसी की किट आती है वैसे स्पर्म काउंट की भी। बट इज इट इफेक्टिव देन? नो, इट इज नॉट, इट शुड बी डन बाय एक्सपर्ट, ऑफ कोर्स इट इज, लेकिन ये बेसिक चीज है। जैसे यू गेट, दिस इज लाइक अ स्क्रीनिंग, कुछ नहीं से कुछ सही। हाँ, कुछ तो आइडिया आ जाएगा कि स्पर्म काउंट ठीक चल रहा है। सर बंदा स्मोकिंग करता है, बंदा ड्रिंकिंग करता है, बंदा ये करता है वो करता है, उससे खराब हो रहा है। व्हाट अबाउट द वंस जो कुछ नहीं करते, इन टर्म्स ऑफ नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो बैड हैबिट्स, नो बैड फूड ईटिंग, ऑल्सो नो मास्टरबेशन, इसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है? देयर आर चांसेस? बिल्कुल, खाए पिए कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बारह भारत ये होता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार वो उस बंदे को हार्ट अटैक आ गया, वो बेचारा इतना दुबला पतला है, वो कभी नॉनवेज नहीं खाता, वो कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया। हाँ। तो ये तो फिर नसीब की बात है, ये नसीब की बात है। लेकिन जो अपने हाथ में वो करो, जो अपने हाथ में नहीं है वो भगवान के ऊपर छोड़ो। इसको भी हो सकता है इफ ही इज। यस यस यस, ऑफ कोर्स। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं सर? बहुत सारे रीजन है, इनफैक्ट जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, हाँ, genetic क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। या कोई प्रॉब्लम हो सकता है ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, या पिट्यूटरी का ट्यूमर हो, या ब्रेन का ट्यूमर हो, जिससे कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन का सेंटर ही ठीक से काम नहीं कर रहा हो। इवन इतना ही नहीं, तो आजकल एक रिसर्च आया है जो स्टडी कहती है कि मेल इनफर्टिलिटी का कैंसर से भी संबंध है। ओवरऑल 7 साल 8 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल के इंसान तक सब एज ग्रुप में कैंसर का मेल इनफर्टिलिटी से रिलेशन दिखाया गया है। पहले लोग बोलते थे कि टेस्टिस का कैंसर मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, आजकल लोग बोलते हैं कि थायराइड का कैंसर रहो, या प्रोस्टेट का कैंसर रहो, या टेस्टिस का रहो, या ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया भी मेल इनफर्टिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल कैंसर एंड इनफर्टिलिटी आर ऑल्सो स्टडीड एक्सटेंसिवली, and the relation of cancer with male infertility is also studied extensively, and they have found that there is a correlation between a cancer and male infertility. मैं एक स्टेप आगे बढ़ना चाहूँगा, और अभी एक फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी नाम का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा जर्नल है, जिस जर्नल में एक रिसर्च आया है, इसमें उन्होंने बोला है कि ओवरऑल मेल हेल्थ एंड मेल इनफर्टिलिटी, अब हम लोग मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ इट। देखो, अब मैंने स्मोकिंग से, टोबैको से शुरू किया, लेकिन हम लोग अभी कहाँ पहुंच गए, ब्रॉडर एस्पेक्ट पे। ओवरऑल हेल्थ विच इंक्लूड्स फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ हैज गॉट रिलेशन विथ मेल इनफर्टिलिटी। सो इफ अ मैन इज हेल्दी not only physically but also mentally, this person is not going to have any problem
as far as infertility is concerned. So health is wealth, और हेल्थ अच्छे रखो तो शायद ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. Obesity is an issue for fertility? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं IVF की प्रैक्टिस करता हूँ. इतने में एक 5-6 साल में मेरे पास इतने पेशेंट्स आ रहे जो जिनका BMI 35, 37, 38 रहता है, वेट 110 किलो रहता है, टिपिकल ओबेसिटी, एंड देयर सीमेन काउंट इज इनवेरिएबली वेरी लो. सो इट इज सेड दैट जितना BMI बढ़ेगा, हर यूनिट BMI जो बढ़ता है उससे 5 मिलियन से लेकर के 10 मिलियन तक काउंट कम कम होते जाता है. इसलिए ओबेसिटी का भी स्पर्म काउंट से रिलेशन है, एंड इट इज वन ऑफ द नोन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल इनफर्टिलिटी. तो ओबेसिटी से भी दूर रहना. इतना ही नहीं, सिर्फ ओबेसिटी नहीं, एकदम लीन एंड थीन जो रहते हैं ना लड़के, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है. और इसमें कुछ लोगों को जैसे थायराइड की बीमारी भी हो सकती है. थायराइड कम रहा, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, तो ओबेसिटी होती है. थायराइड ज्यादा रहा, जिसको हम लोग थायराइडॉक्सिकोसिस बोलते हैं, उसमें बंदा एकदम दुबला पतला रहता है लेकिन उसको कोई बीमारी रहती है. तो ज्यादा BMI और बहुत ज्यादा BMI और बहुत कम BMI, ये दोनों भी चीजें इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है. सर एक ऐसी आपसे बात कर, अभी क्वेश्चन एक दिमाग में आया कि हमने ओबेसिटी वाले मेल की बात की, हमने लीन वाले मेल की बात की. ऐसी क्वेश्चन है कि जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी सॉफ्ट है, थोड़ा सा नॉट दैट अल्फा वाला काइंड ऑफ, उसको क्या मतलब, ये लड़कियों के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि क्या उसमें भी ये फर्टिलिटी वाले इश्यूज हो सकते हैं कि जस्ट बिकॉज हिज पर्सनैलिटी इज वेरी सॉफ्ट एंड नॉट अल्फा, नॉट. ऐसा नहीं है. लेकिन देखो वो कैसा है कि उसमें फिर से एक साइकोलॉजी का पार्ट आता है. और हम लोग आजकल सोसाइटी में देखते हैं कि ऐसे कुछ मर्द भी होते हैं जिनमें थोड़ा सा फेमिनिटी ज्यादा रहती है, और शायद उनमें सेक्स का इंटरेस्ट भी कम रहता है. एंड आई हैव सीन बॉयज, दे कम फॉर कंसल्टेशन. आई नो वन बॉय, ही सेड दैट सर, आई हैव अ स्पेशल एफिनिटी फॉर बॉयज. He is total male. If you see physically, structurally, he is total male. But mentally, उसके दिमाग में जो चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ. और मेरे साथ ये पेशेंट का हमारा जब काउंसलिंग हुआ तो उसने मुझे डायरेक्टली बताया कि सर, I don't have any affinity for girls, and I have affinity for boys to some extent, but not to that extent कि sexual attraction है. लेकिन मुझे ऐसा कुछ तो भी लगता है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. So it is a state of mind, and I think this is the type of personality which is increasing these days in society. In men. Yeah, in men, and that can, because then again they don't feel like performing. So did you guys find out why is it happening? I have tried to find out in such patients by doing some investigations, and surprisingly, most of them, they have normal reports. Like if you do testosterone levels, the testosterone levels are normal. Physically they are normal, their testis size is normal, their semen count is normal, but they have problem in mind. So it's a mind game, and we have to think about this also. Is it the mind which is playing games and which is making them infertile, or maybe they are not able to have erection, not able to have ejaculation, not able to perform sexually because they don't have that in mind. So this is also becoming very common. और ये थोड़ा सा मतलब चिंता का विषय है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए. जो मर्द है वो मर्द रहना चाहिए, और जो औरत है वो औरत रहना चाहिए. ईस्ट्रोजन का हार्मोन है जो औरत को औरत बनाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मर्द को मर्द बनाता है. तो जो अपने अपने रोल्स सोसाइटी ने या भगवान ने आपको दिए हैं उसको आपको निभाना चाहिए. Last couple of things. Is masturbation good? Masturbation is not at all bad. Okay. Not at all bad, because see, it is in fact, in a way, it is a way of expressing your desire. So masturbation, it's a myth कि masturbation, excessive masturbation करने से कुछ प्रॉब्लम आती है. वो ब्लाइंडनेस आती है, और काफी कुछ बोलते हैं लोग, कमजोरी आती है. और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं सर हम लोगों ने एक गलती की है. हम लोग मैं जब छोटा था, जब जवान था, तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की और उसके मैं फल अभी भुगत रहा हूँ. मेरे को masturbation की आदत थी और उसके कारण मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे बहुत धात जाता है, वीकनेस आता है. ये सब मिथ है, ये सब मिथ्या है, और ये सब गलत है. मैस्टरबेशन से ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन एक्सेसिव मैस्टरबेशन
सी इट्स अगेन it comes the mental health का इशू, एक्सेसिव एडिक्शन का इशू हो जाता है ये. अच्छा, दैट वे इट विल गो. यस, हाँ. लाइक जैसे पॉन का, हाँ, जैसे हाँ, मैंने हाँ. बोला कि पॉन तुमने Right. एक आध बार देखा तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन तुमको एडिक्शन हो गया पॉन का, तो फिर वो तो उसका उस फील की आदत impact हो जाएगी. करेगा. सिमिलरली मैस्टरबेशन का भी है. मैस्टरबेशन का, इफ यू गेट हम्म. एडिक्टेड टू मैस्टरबेशन, देन मे बी you will not get erection while you are doing performing sexual act. So it may so happen, but then it happens only with patients having people having addiction, not with a normal person. Normal person having doing masturbation once in a while. Sir, what is addiction? normal. What is addiction? What is excessive? मतलब बहुत ही ऐसा सिंपल बोलना क्वेश्चन है, बट क्या हो गई? ठीक है, नहीं, एडिक्शन तो मेंटल आ गया, हाँ. एक्सेसिव किसको बोलेंगे अपन? आई डोंट नो, उसका ऐसा कोई कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इतना एक्सेसिव है, बट यू ऑल्सो यू योरसेल्फ रियलाइज कि अरे ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे तो व्हेन यू गेट ड्रैग्ड, व्हेन यू आर ड्रिफ्टेड, और व्हेन यू नो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता, तुमको समझ में आ जाता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है, और यदि ये ऐसा हो रहा है तो तुम समझ जाओ कि दिस इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. एंड एक्सेसिव मास्टरबेशन से इरेक्शन और ये सब का भी इशू आ सकते हैं. आ सकते हैं. उसमें और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. अभी अपन ने मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिन कांटेक्ट नहीं रखना, जिसको हम लोग एब्स्टिनेंस बोलते हैं, ज़्यादा दिन का एब्स्टिनेंस भी स्पर्म के क्वालिटी पे असर करता है. तो जो एब्स्टिनेंस का पीरियड है, सबसे बेस्ट पीरियड कितना है मैं आपको बताऊँ? 2 to 3 days. 48 to 72 hours is the best period. Then you get the best quality sperms. But if you have a abstinence of more than 7 days, if you do not have sexual contact with anybody, and if you do not masturbate for 7 to 10 days, and then if you collect the sample and if you give to the laboratory, you will find that the sperm count has gone down and the quality of sperm has Gone down. gone down. So the period of abstinence should be 48 to 72 hours only. 2 से 3 दिन का पीरियड ये सबसे बेस्ट पीरियड है, क्योंकि उसमें स्पर्म की क्वालिटी सबसे अच्छी रहती है. तुम्हारा एब्सेंस का पीरियड जब 15 दिन का हो जाता है तो क्वालिटी खराब होती है. ये भी ध्यान में रखना जरूरी है. ओके. इसलिए मास्टरबेशन कभी कभी हेल्प भी करता है. यदि तुम 2-3 दिन में तुम इफ यू आर मास्टरबेटिंग, देन मे बी इफ इवन इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, देन दैट क्वालिटी ऑफ स्पर्म इज मेंटेन, क्योंकि वो स्पर्म्स एक जगह पे स्टैसिस नहीं रहता उसका, वो निकलते रहते हैं बाहर, उससे उसका क्वालिटी इंप्रूव होता है. सर, आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स जो अभी बेबी के लिए जा रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे मेल को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि इन अ लाइफस्टाइल वे, कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तुझे ये नहीं करना है, मतलब ऑब्वियसली स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, कितने टाइम पहले छोड़ कर रहा है, ठीक है, लेट्स कंसीडर कर रहा है. हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. प्रैक्टिकल, कितने टाइम पहले मुझे छोड़ना है टू व्हेन आई एम प्लानिंग अ बेबी, एंड और क्या क्या मुझे ठीक करना है चीजें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. देखो, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो स्मोकिंग नहीं करता है उसको बच्चे नहीं होते. हमको तो पता है कि, लेकिन ओवरऑल शायद अगर वो मैसेज जाए तो स्मोकिंग बंद हो. एग्जैक्टली. तो ओवरऑल उसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन का जो पीरियड रहता है वो 80 डेज के आसपास रहता है, 72 to 80 डेज. इसका मतलब है 2 से 3 महीने का. तो आज जो आप काम करोगे उसका इफेक्ट 2 महीने के बाद दिखेगा. मतलब स्पर्म की जो प्रोडक्शन की साइकिल रहती है ना, वो 72 to 80 डेज की रहती है. तो आज आपने स्पर्म प्रोडक्शन हुआ तो वो निकलेगा कब? जो प्रोडक्शन होगा वो 70 दिन के बाद बाहर निकलने वाला है. इसलिए आपको 2 से 3 महीने का पीरियड यदि आपने शुरू में दिया, 3 महीने का पीरियड सबसे बेस्ट है, जिसमें आपने लाइफस्टाइल पे फोकस किया. नाउ सपोज अ यंग कपल married since 1 year or 2 years, now they are planning for pregnancy and they have very bad lifestyle because they are both of them, they are working in corporate. एक सेकंड ना, मैं इसको फ्रेम करता हूँ, ठीक है. सर, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल टू दोस कपल जो 1 साल से या 2 साल से जस्ट शादी हुई है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल, समझ लीजिए कि सपोज अ कपल who is married since 1 year or 2 years and they are planning for conception now and they have a very typical lifestyle. They are very busy, no time for love. आजकल ये नया चीज़ आ गया है, प्यार के लिए वक्त ही नहीं, क्योंकि इतना बिजी है, इतने कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, फिर अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये भी चल रहा है, रोज़ रात को पार्टी शार्टी चल रही है. अब ये सब चीज़ें यदि आप कर रहे हो तो थोड़ा सा टेक अ पॉज, think about it. Now you are a responsible adult couple and now you are going towards the next step, which is the most important step in your life, and that is parenthood.
एंड फॉर पेरेंटहुड व्हाट यू नीड इज अ गुड लाइफस्टाइल, क्योंकि यही शुरुआत है और इसको आपको फिर कंटिन्यू करना है। तो 3 महीने का पीरियड जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन का पीरियड रहता है, तो कोई भी इफेक्ट जो होता है वो 3 महीने में होता है। इसलिए आप यदि आपकी लाइफस्टाइल को अभी से मॉडिफाई करना शुरू करो, आप भले ही सोशल ड्रिंकिंग कर रहे हो तो उसको वीक में एक बार कर्टल करके वीकेंड पे रखो, स्मोकिंग को या टोबैको को बंद करो, रोज 30 मिनट्स का वॉक लो, और खाने में भी आप अच्छी चीज़ें खाओ। देखो एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रहता है, उसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। ये एंडोर्फिन कब रिलीज होता है बॉडी में, तुमको अच्छा कब लगता है, अल्कोहल पीने से तुमको 2 मिनट के लिए तुम नशे में जाते हो और फिर रात को 2 बजे उठ के पेंटॉप की गोली खाते हो कि नहीं, दूसरे दिन हेडेक होता है कि नहीं। तो ये जो है ये थोड़े देर के लिए तुमको अच्छा आनंद देने वाला चीज़ है, लेकिन उसका बैड इफेक्ट लंबा है। उल्टा आप एक्सरसाइज करो, आपको यू फील गुड, and that is the release of endorphins. And this endorphin, even sex also is one activity which gives you a lot of good feeling and release of endorphin. इसलिए sex is considered as one of the best exercise, क्योंकि if you have a regular sex at least 2 to 3 times in a week, then definitely you will have the good effect of it on your overall health. So sex is known to how does it help you in health? it releases happy hormones. Okay. It releases endorphins, and maximum calories are also burned while you perform, when you are doing sexual activity, calories भी burn होती है और endorphins भी रिलीज होते हैं, अच्छा फीलिंग आता है और उससे तुम्हारे ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, तुम्हारा बॉन्डिंग भी अच्छा रहता है। देखो and any difference in physical health due yes, to that? definitely physical health, क्योंकि ओवरऑल माइंड एंड बॉडी इट गोज टुगेदर, सो फिजिकल हेल्थ भी बढ़ती है। देखो ट्राई वीकली एंड ट्राई वीकली, समझ लो फर्क। ट्राई वीकली मीन्स थ्राइस अ वीक, 3 times a week. So ideally you should have intercourse try weekly. If you don't have intercourse try weekly as in हफ्ते में 3 बार? 3 बार, हफ्ते में 3 बार। Try weekly is the ideal sex number of sex performances you should have in a week for a healthy young couple. Okay. 3 times in a week. Otherwise you end up doing try weekly, TRY try, अच्छा WEAK, Okay. weekly. Okay. So if you are not healthy, then you go for try weekly. You go on trying, but you are weak. If not thrice a week, then what should At be the least minimum? twice a week. Twice a week. Twice a week. is also- At least twice a week. Yes, you must have intercourse or sex at least twice a week. To have a good That is considered as health. normal, healthy approach. ओके ओके। और एक कोई क्वेश्चन जी, भूल गया मैं, यही मेरे को एकदम शॉकिंग दे दिया। इसमें ये पूछ सकते हैं कि इफ ट्वाइस अ वीक देन डज द गैप मैटर, मतलब बीच में एक बार और एंड में एक बार या फिर दोनों बार? हाँ, वो भी करेंगे और फिर जिम के बारे में बात कर लेंगे। जिम जस्ट वो हाँ जो केराटिन टाइप वगैरह लेते हैं उसमें बहुत मिक्स है आजकल, प्रोटीन पाउडर ले रहे तो उसमें कितना इफेक्ट होगा उसका। तो अभी क्या पहले वो इसको स्ट्रेच करोगे? इसको हफ्ते वाला एक ले लेना, मैं उसका एक डाला ही कि एक उसके ऊपर कर सकते हैं। सर व्हेन यू सेड थ्राइस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, तो ऐसे कुछ है क्या कि उसका गैप शुड बी नॉर्मल या स्टार्टिंग में एक हो गया लास्ट में एक हो गया, ऐसा कुछ क्या मतलब? देखो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि 40 to 72 आवर्स का गैप बेस्ट रहता है, लेकिन कम गैप रहा तो भी चलता है। लेकिन अब इसमें मैं और एक चीज आपको बता रहा हूं। व्हेन यू हैव दैट इंटरकोर्स एट फर्स्ट, उसके बाद 42 to 72 आवर्स बाद यू शुड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसमें यू कैन नॉट हैव दिस मैकेनिकली, जो हम लोग बात कर रहे हैं इट इज नॉट मैकेनिकल। हाँ, यू कैन नॉट थिंक एंड फ्रॉम विदिन within obviously the love is not mechanical thing. It is a passion and love, intimacy which comes naturally. So you cannot have this कि ये इतने घंटे के बाद होना चाहिए, इतने दिन के बाद होना चाहिए। अभी मैं आपको now that we are discussing this, मैं आपको बताता हूँ फर्टिलिटी के जो पेशेंट्स हमारे आते हैं उनको वही प्रॉब्लम होता है। उनको क्या होता है, बच्चे नहीं हो रहे, तो हम लोग उनको बुलाते हैं, पेशेंट को बोलते हैं आप आओ चेकअप के लिए। हम लोग उसका ओवुलेशन स्टडी करते हैं, उसको फॉलिकुलर ट्रैकिंग बोलते हैं। फॉलिकुलर ट्रैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की मतलब लेडी की सोनोग्राफी करते हैं, और सोनोग्राफी करके हम लोग देखते हैं कि अरे ये ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, इसका फर्टाइल पीरियड कौन सा है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि ये इतना मैकेनिकल हो जाता है। हम आपको पेशेंट आती है केबिन में आई, उसका चेकअप किया और फिर वो दोनों कपल बैठे हैं, उनको बोलते हैं अभी आज इंटरकोर्स रखो। अरे ये कोई ऐसा ऑन ऑफ बटन थोड़ी है कि अभी रखो, चलो चालू करो, अभी बंद करो, ऐसा नहीं होता।
तो यही दिक्कत होती है। तो फर्टिलिटी का इशू इसलिए बढ़ता भी है कभी कभी, क्योंकि जो डॉक्टर बताता है वो मैकेनिकली आज करना ही है, वो परफॉर्मेंस प्रेशर भी आता है। एंड नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स यू शुड हैव इंटरकोर्स और सेक्स, अब मैं आपको ये भी बात बताता हूँ। कुछ लड़के जो होते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि हमारे पेशेंट जो आते हैं जो बताते हैं, कुछ लड़के जो होते हैं वो ना दूसरे लड़कों को गुमराह करते हैं और थोड़ा सा कुछ गलत चीज़ें भी बताते हैं। जैसे कि कोई बोलता है अरे मैं तो दिन में 4 बार सेक्स करता हूँ, तू क्या एक बार भी नहीं कर पाता? अभी ये जो पीयर प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर ये भी आजकल बहुत बढ़ रहा है। कभी कभी किसी किसी का थोड़ा सा सेक्स का ये ज़्यादा होता है और उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा हो सकती है। किसी को थोड़ा कम इच्छा हो सकती है, क्योंकि हर एक का अलग अलग पर्सनैलिटी होता है। और जैसे किसी बंदे ने बता दिया, किसी फ्रेंड ने, कि मैं तो दिन में या 1 घंटे में 2 बार सेक्स कर सकता हूँ, तू कर सकता है क्या? तो वो बेचारा और डर जाता है। वो बोलता है अरे मेरा तो एक बार सेक्स किया कि दूसरी बार करने की इच्छा नहीं होती, इरेक्शन ही नहीं होता। तो ये भी चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिन में 2 बार सेक्स करना है, 3 बार 3 बार सेक्स करना है, ये कुछ नहीं है। इट शुड कम फ्रॉम विद इन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद कैलकुलेशंस की, इट इज़ नॉट मैकेनिकल। एंड ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये चिंपांजी रहते हैं, बंदर, जो चिंपांजी है जो बोलते हैं कि दिन में 16 बार सेक्स करते हैं। हम इंसान हैं, हम लोगों को इमोशंस है, हम लोग सोचते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमको टेंशन रहते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि अब दिन में 2 बार सेक्स रखो या दिन में 4 बार, ऐसा नहीं रहता। वो ऐसा नेचुरली आना चाहिए, जो भी है नेचुरली रहना चाहिए। सर, ये फर्टिलिटी या कंसीव ना करना या ये सब वाले इश्यूज लव मैरिज वाले कपल्स में ज्यादा देखा जा रहा है या अरेंज मैरिज वाले कपल्स में, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने लव मैरिज वाले कपल्स को बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखा है, और अरेंज मैरिज वालों को फ्लॉप होते हुए भी देखा है, उनके प्रॉब्लम्स देखे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मामला है। इसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कोई इशू नहीं है। इट इज़ अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड हाउ योर केमिस्ट्री गोज। सी, एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मियाँ बीवी की केमिस्ट्री यदि अच्छी हो, उन दोनों में यदि अच्छा प्यार है, तो सब कुछ अच्छा है। ओके, तो केमिस्ट्री मैटर्स। एंड सर ये एक आई फॉरगॉट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये जो जिम जो हम कर रहे हैं आजकल, बहुत एग्रेसिवली हम जिम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिम कर रहे हैं, इनके लिए कुछ है? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। मेरे पास जब पेशेंट्स when they walk in, into the chamber, when they come into the chamber, as they walk in, I have this habit of making a flash diagnosis. मैं खुद को एक चैलेंज देता हूँ कि चलो ऑब्जर्व करो, इसका ऑब्जर्व करो, इसका डायग्नोसिस करके देखो, और फिर इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोसिस खराब निकला है कि नहीं वो देखो। तो कोई पेशेंट आता है, उसको देख के समझ में आता है कि वो एकदम सिगरेट वाला है, क्योंकि वो आए बराबर चैम्बर में, स्मोकिंग का बिल्कुल समझ में आ जाता है। कोई रहता है जो सुबह उसका डे स्टार्ट्स विद बियर एंड एंड्स विद विस्की, तो वो बियर पी के आता है तो समझ में आ जाता है। इसी तरीके से जब मैं देखता हूँ कि कोई एकदम मस्कुलर, मतलब हाईली मस्कुलर, देखो अपनी बॉडी अच्छी रखना ये सबका कर्तव्य है, और उसके लिए जिम जाना बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली जिमिंग इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। मतलब आई वुड लाइक टू से कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद द जिम, बट व्हेन आई सी सम जैसे वो विदर्भ श्री, भारत रत्न जो, और भारत श्री या पहलवान जो रहते हैं, जो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं उनके बॉडी बिल्डिंग से लेकर के उनको बाकी कुछ नहीं दिखता। And then their obsession leads to the excessive use of a very dangerous drug, and that is anabolic steroid. And if anybody is consuming anabolic steroid for the muscle mass or bodybuilding, then it is absolutely harmful. ये सिर्फ मेल इन्फर्टिलिटी का कारण नहीं, इसमें तो स्पर्म काउंट नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, और इनको पता भी नहीं चलता। ये अपने इसमें मस्ती में रहते कि मेरी कितनी बॉडी बन गई, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसके लिए जो वो कर रहे वो शरीर को कितना घातक है। इतना ही नहीं, आपको शायद पता होगा कि कोविड के दौरान काफ़ी सारे हमने ऐसे वारदात सुने, न्यूज़ मिली हमको कि जिम वाले लोग हैं जो एकदम अच्छे हैं और एकदम सडनली उनकी डेथ हो गई, जबकि नॉर्मल इंसान अच्छा रहा। अब ये सब जिम वाले को प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जो स्टीरॉइड्स लेने वाले लोग हैं, और ये स्टीरॉइड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉइड्स क्या करता है, अल्टीमेटली तुम्हारी प्रतिकार शक्ति कम करता है, तुम्हारी इम्यूनिटी घटाता है, और इससे स्पर्म काउंट तो नील हो जाता है,
इरेक्शन होता ही नहीं है, टेस्टिस का साइज स्मॉल हो जाता है और तुम्हारा ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, तो कोई भी इन्फेक्शन जल्दी कैच कर लेता है। तो इससे दूर रहो, इनफैक्ट शुगर भी बढ़ती है। सर तो जैसे अपने स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली, बट ये जो डब्बे हम जिमिंग वाली टर्म में बोलते हैं डब्बे खाना, प्रोटीन और ये सब, इसमें कुछ इशू है? नहीं, प्रोटीन के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि प्रोटीन्स खाना नहीं चाहिए। एक दो चीज़ें मैं जस्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो आईसीएमआर के न्यूट्रिशन के गाइडलाइंस आए हैं, इंडियन गाइडलाइंस 2024 में। 24 की जो गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने किया है, बोला है कि एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोटीन पाउडर इज हार्मफुल टू द बॉडी, इट इज हार्मफुल टू द किडनीज ऑल्सो। एंड मुझे एक मतलब हर चीज का एक प्रमाण हो तो प्रमाण सही होता है। है, कोई भी प्रमाण में तो प्रोटीन तो लेना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव Excessive. लोग लंच डिनर स्किप करके सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। और एक चीजें मैं बताना चाहूंगा जो मुझे, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई हैव गॉन थ्रू दिस सम आर्टिकल्स इन द journals where they have said that some people, see, it is not all people will never do that, but some people they add steroids into the protein powders and then they say that हमारे प्रोटीन पाउडर से आपको बहुत अच्छा रहे। लेकिन मैं ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि प्रोटीन पाउडर लेना भी चाहिए सही मात्रा में। प्रोटीन का यदि उपयोग करो, वे प्रोटीन्स भी लोग बोलते हैं कि उससे अच्छा मसल मास बनता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपने जैसे कहा कि जैसे कोई आता है तो आप ऑब्जर्व करते हो एंड एवरीथिंग। अब मुझे अगर टेस्ट कराना है तो उसका खर्चा कितना आएगा, एंड आपके हॉस्पिटल में होता है क्या? यस, सीमेंट टेस्ट तो मेरे हॉस्पिटल में होती ही है, हाँ, सवाल ही नहीं आता। हाँ, और मैं इसमें आपको एक बार और बात और कहना चाहूंगा। और किससे कराना, मतलब Yes. ऑब्वियसली आपका हॉस्पिटल है, ऐसे तो शहर में और भी होंगे, एंड इज देयर एनी इशू इन दैट आल्सो कि कोई भी आके टेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ है? It is said that semen analysis is one test which is very easy to do badly, and many laboratories they are not up to the mark. Not all, but if the laboratory is not up to the mark and if they are not following the WHO criteria for semen analysis, they will not be able to give the correct report. How do I decide it? मतलब You should actually see the authenticity of the lab. how? The lab which is accredited by agencies like NABL, which is considered as a top agency which gives accreditation to the lab, and if it is an authenticated lab, then you will not have any problem, because there a pathologist who is expert in semen analysis will do this test. This test is very cheap. अभी कुछ लोग तो 100 रुपए में भी ये टेस्ट करते हैं, तो 500 से 1000 रुपीज के इसमें आपको ये टेस्ट हो जाएगी। Okay. लेकिन ये टेस्ट बराबर करना, इट इज अ चीप इनएक्सपेंसिव टेस्ट, बट इट हैज टू बी डन बाय अ प्रॉपर पर्सन, बिकॉज द पर्सन हु इज डूइंग दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज किसी का मतलब जिंदगी भर का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको समझ लो रिपोर्ट दिया जो हाँ, मैं ये पूछने वाला था कि ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी केसेस आए होंगे ना कि गलत रिपोर्ट देके उसको आईवीएफ और उसमें सब कन्वर्ट कर दिया क्लाइंट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नील काउंट का रिपोर्ट यदि किसी का आता है ना, तो कम से कम 3 बार स्पर्म काउंट करो, 3 बार, और अलग अलग लेबोरेटरी से करो, ताकि वो बेचारा इंसान ऐसा ना हो कि वो अच्छा खासा इंसान है, हेल्दी इंसान है, और उसका रिपोर्ट गलत आ गया इसलिए वो पूरा उसमें विशेष सर्कल में अटक गया। हाँ, राइट। सर सेक्सुअल प्रोडक्ट्स अभी बढ़ चुके हैं, नए नए ब्रांड्स आ चुके हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स हो गया, कॉन्डम्स फ्लेवरलेस कॉन्डम्स आ गए, अलग अलग टाइप का कॉन्डम्स आ गए, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो इज दिस गुड? आर देयर एनी इश्यूज विद दीज थिंग्स आल्सो? क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो ऑन योर प्राइवेट थिंग्स, वेरी सेंसिटिव थिंग्स, तो कुछ इश्यूज है इससे? आई विल टेल यू, एनी ब्रांड ऑफ अ कॉन्डोम विच इज रेप्यूटेड ब्रांड विल ये ऐसे हिम्मत नहीं करेगा कि कोई प्रोडक्ट ऐसा लाए मार्केट में जिससे कि हार्म हो। बट सर ये फ्लेवर जो बोलते हैं और वो सारी इससे कुछ इशू नहीं होगा? That is what I am saying, कि nobody will do that. It is not having any harmful impact. All It is all everything is tested. tested. It is all tested. In fact, that is the reason why people are using it so safely, and they are happy with that. So it is not like a, but of course, it has to be a reputed. It has to be a brand which is reputed, which is already established in the market. Then they will not do this thing because they are also worried about their reputation. And lubricants? I will tell you one point about lubricants. Lubricants or jellies, which are used by many for lubrication, they are
good for sexual intercourse. There is no problem. Because doctors also prescribe it. They prescribe it because some people have this problem of dryness of vagina, and this dryness of vagina may lead to difficulty in intercourse. Lubricants are good, but there are some products which are spermicidal, means they will kill the sperms. And if they are killing the sperm, if they are containing some chemical material which is killing the sperm will be not be able to go inside the uterus, and then there will be issue of fertility. इसमें बच्चे होने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो लुब्रिकेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो उसमें कोई स्पर्मिसाइडल जेली नहीं है. ये आपको कंफर्म करना जरूरी है. और ये आप परमिसाइडल जेली वो लिखा रहता है पीछे में, लिखा रहेगा. और आपको केमिस्ट से भी ये कंफर्म करना है, या फिर सबसे बेस्ट है डॉक्टर से पूछो. क्योंकि यदि इफ यू वांट टू सजेस्ट एनी, इफ यू कैन, एनी लुब्रिकेंट ब्रांड और जो आप लोग करते हो डॉक्टर ब्रांड्स, देखो उसमें दो चीजें. एक स्पेशली डिजाइंड ब्रांड्स है. अच्छा. जो सिर्फ मतलब एज अ थोड़ा सा ये मार्केटिंग के सबसे अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन स्पेशल डिजाइन ब्रांड्स है जो स्पर्मिसाइडल जेली नहीं कंटेन करते और जो सेफ रहते हैं, और वो एक्चुअली अवेलेबल रहते हैं. ओके, सो you should read it and you should confirm that it does not contain anything which is harmful to the sperms. जैसे कि कॉन्डोम्स है, कॉन्डोम्स में हमेशा एक केमिकल रहता है जो स्पर्म को एक्चुअली मार देता है. अच्छा. स्पर्मिसाइडल मटेरियल कंडोम में रहता ही है, वो डबल प्रोटेक्शन देता है. We thought कि it just barrier है. It is not only a barrier, it also contains the chemical which is spermicidal. So all the condoms will have a spermicidal chemical inside it, and therefore even if accidentally the condom breaks, there is a double protection because of this spermicidal. ये नहीं मालूम था भाई. Yes. So that is why we always say कि यदि आपको sperm टेस्टिंग करना है, सीमेंट टेस्टिंग, तो कुछ लोगों को आदत रहती है कि कंडोम में कलेक्ट करके देते हैं. We always tell them do not collect it in a condom. It will, तो रिपोर्ट आएगा पूरे स्पर्म डेड. ऐसे ही होता है सर. हाँ बिल्कुल होता है. स्पर्म डेड करके रिपोर्ट आएगा और फिर आपको आश्चर्य लगेगा कि रिपोर्ट में स्पर्म डेड क्यों है. लेकिन उसका कारण रहता है वो कंडोम के अंदर की केमिकल. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक कंटेनर में दो और कंडोम में मत दो आप टेस्टिंग के लिए. तो सर ये पॉडकास्ट, ये बातचीत में हमने आज फर्टिलिटी इन मेन की बात की, काफी सारे इंसाइट्स मिले. आई होप नेक्स्ट वाले में हम वुमेन्स में जो फर्टिलिटी उसके बारे में हम बात बिल्कुल करेंगे. जरूर. और बहुत अच्छा लगा है. थैंक यू. इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन. थैंक यू.